friends, welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Drangadra. In today's video, we are going to start a new chapter of EVS, that is mangoes round the year. See, this is the season of mangoes. In summer, uh, we can easily get mangoes, and we can also get fresh mangoes during the summers. Now, let us start the lesson with an activity. Here you can see there are three children. They are talking to one another. This is Neetu, this is Aman, and this is Preeti. Let us see what Neetu is saying. Wow, Aman's lunch box has sweet puris. This is the lunch box of Aman, and he is having sweet puris in his lunch box. Now Aman is saying, hey, today Neetu has brought potato sabji. This is a tiffin box of Neetu and she has got potato sabji. Now Preeti is saying, I have got bhindi. She has got bhindi. Now again these three students are talking to one another. What Aman is saying, oh Neetu, I think your potato sabji is spoiled. Aman is saying that your sabzi is not now eatable, it is spoiled. And Preeti is saying, don't eat that. You may fall sick. Here, you take some bhindi. See, in our school also, in many a times we are sharing our lunch boxes. If someone has spoiled his or her sabji due to weather, then we allow them to share the sabjis with the other students. Now here also the same thing happened. The Preeti is sharing her sabji, bhindi sabji, to Neetu. Now let us see to the second slide. Now experiment on bread. See, this experiment can easily done at your home, but this is not the time to do this experiment nowadays in your home due to COVID situation, because nowadays we are also getting the cases of black fungus. So this is what we are learning about the black fungus also in our experiment, but in inverted commas I am saying that please do not try this at your home. एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे अभी करना है नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी जो है ब्लैक फंगस जो है, जिनको कोरोना, जिनकी अभी तो ज्यादातर सभी लोगों को कोरोना हो चुका है, जिनको नहीं हुआ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन लोगों को अभी एक नया जो डिसीज है म्यूकरमाइकोसिस वो होने के चांसेस है। तो आप लोग कोशिश करें कि ये एक्सपेरिमेंट जो म्यूकरमाइकोसिस में ब्लैक फंगस होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ये ब्लैक फंगस कैसे है। ये जो ब्रेड में जो फंगस होता है वो ब्लैक फंगस होता है, रोटी में जो फंगस होता है, आप बासी सब्जी या खुराक बिल्कुल भी ना खाइए अभी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंट, वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन आफ्टर नॉर्मल सिचुएशन, वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट इन आवर क्लास आल्सो। Now see, if you have observed that in bread you can find these things. If you kept your bread for 3 to 4 days, you can find this kind of spots on the bread. This is fungus and this is black fungus. और इसी को जो ये हमारे बॉडी में अगर होता है ये ब्लैक फंगस, तो वही डिसीज का नाम जो है वो म्यूकरमाइकोसिस है। अब ये ब्रेड में ये फंगस कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सो ये जो है ये ताज़ा है, अगर उसको 2-3 दिन हम पड़े रहने देते हैं तो ये कंडीशन उसकी हो जाती है, यानी उसके अंदर जो है छोटे छोटे वायरसेस वगैरह जो है फंगस वो लग जाती है और इसको स्पॉइल्ड कर देती है। Yes, now we'll discuss certain questions. Let us see. How did Aman know that the potato sabzi had got spoiled? See, due to bad smell, you can also easily identify that the sabzi is spoiled or not. Now let us see the answer. How Aman came to know. Yes, now the bad smell from the potato sabzi gave the clue. So the bad smell of the potato sabzi has given the clue to the Aman that this potato sabzi is not now eatable. We should not eat it. Have you ever seen some food that has
got spoiled? ऑब्वियसली सभी लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा फूड है वो स्पॉइल्ड हो जाता है, घर पर ऐसा अक्सर होता है. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? देखो उसकी देखते उसका आंसर ही देखते. यस, आई हैव सीन फूड्स दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड. द स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स बैड एंड शोज अनयूजुअल कलर्स. हमने ब्रेड्स में भी देखा कि वो अनयूजुअल कलर्स दिखाता है ब्रेड वगैरह में, लेकिन ये चीज आपको रोटी में भी मिलेगी. अगर रोटी 3-4 दिन पड़ी है तो उसमें भी ब्लैक फंगस हमें दिखाई देगा. तो अगर वो क्या है, एक तो क्या है, अगर कोई सब्जी खराब हो जाती है तो वो क्या है, स्मेल उसकी गंदी आती है, इट इज स्टिंकिंग लाइक एनीथिंग, और इट शोज अनयूजुअल कलर्स. नाउ प्रीति टोल्ड नीतू not to eat the potato sabzi. What would have happened if she had eaten it? See, if we are not eating hygienic food, if we are not eating fresh food, we may fall sick. हम बीमार हो सकते हैं. That is why we need to only eat fresh food. She may have fallen ill if she had eaten. अगर उसने खाया होता तो वो शायद बीमार हो सकती थी. Now we need to write this in your notebook. Look in your kitchen and write down names of food items that. Now here we are having 3 options. We have to write down the names of these food items. Let us see. Can get spoiled in 2 or 3 days. 2 या 3 दिन में कौन कौन सी चीजें हमारे किचन में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर मदर. जो भी आपके घर में खाना पकाता है उनके साथ ये क्वेश्चन आप डिस्कस करिए कि ऐसी कौन सी घर में चीज होती है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कौन सी घर में चीजें होती है जो क्या है कि 2 या 3 दिन में स्पॉइल्ड हो जाती है. वन इज मिल्क. मिल्क को अगर गर्मियों में गर्म नहीं किया रात को और फ्रिज में भी नहीं रखा तो सुबह जो मिल्क है वो स्पॉइल हो जाता है. ब्रेड एंड दाल, ये 3 चीजें ऐसी है. आप इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये 3 चीजें ही लिखनी, आप इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हैं. नाउ कैन बी केप्ट फॉर अ वीक. 1 वीक के लिए जिसको रख सकते हैं. कैन बी केप्ट फॉर अ वीक. 1 वीक के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनको हम लोग जो है वो रख सकते हैं. नाउ लेट अस सी. पोटैटो, अनियन एंड केक. ये 3 चीजें ऐसी है जिनको हम लोग जो है 1 वीक के लिए रख सकते हैं और ये खराब होगी नहीं. वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ. 1 महीने तक कौन सी चीजें ऐसी हमारे घर में है. पिकल. पिकल तो साल पूरा 1 साल चलता है. घी भी जो है वो ज्यादातर बहुत कम खराब होते हैं. और रो राइस यानी कच्चे राइस हम लोग लेके आते हैं, पूरे महीने के एक साथ लेके आते हैं. गेहूं वगैरह जो होते हैं वो साल के आते हैं. तो ये सारी चीजें जो है वो महीने तक भी खराब होती है नहीं. Look at your friends list and discuss in the class. This is not possible in nowadays, but if we meet in the regular class, we are going to surely discuss all these things. Will your list be the same in all seasons? Obviously not. सभी seasons में हमारी list कभी मतलब जो है ये चीजों की कभी same नहीं हो सकती. What would change? No, the list will change in different seasons. Food easily gets spoiled in summer than in winter. सी विंटर में है ना, सर्दी होने के कारण जो है, जैसे फ्रिज में जो ठंडा रहता है तो उसमें हम दूध वगैरह रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है, लेकिन समर में अगर उसको बाहर रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा. तो विंटर में भी है, दूध को अगर बाहर रखेंगे तो खराब नहीं होगा क्योंकि सर्दी होती है ना. तो उसमें जो है कीटाणु इतनी जल्दी से पनप पाते हैं नहीं. When food gets spoiled in your house, what do you do with it? Obviously we'll throw it out. अगर हमारे घर पे कोई खाना खराब हो गया तो हम उसको फेंक देंगे. We throw the spoiled food in the garbage bin. Yes. Now another activity. This is a packet of bread. Most of all of you have seen this. BG returned the bread. Aman's BG went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. See, Aman's BG went to the market to buy a packet of bread. जैसे ही उन्होंने शॉपकीपर को पूछा कि भाई मुझे ब्रेड का पैकेट दो, तुरंत ही शॉपकीपर ने क्या किया कि एक जो है वो ब्रेड का पैकेट उनको दे दिया. लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको देखा
अमन की बीजी ने ब्रेड के पैकेट को तो उन्होंने तुरंत ही वापस लौटा दिया. लुक एट द पिक्चर of the bread packet here and guess why BG returned it. See, if we observe this picture very minutely, we can see here some spots. This is a greenish spot. Here you can see the spot. Here also you can see the spot. Means this is not a fresh packet of bread. So if we eat it, we'll fall sick. Yes, BG may have found that the expiry date of the bread had lapsed. See, in all food items, expiry dates लिखी हुई रहती है. किसी में लिखा रहता है कि इसको खोलने के बाद 1 महीने में यूज कर लो. ब्रेड वगैरह होती है उसको तो खोलने के बाद 24 घंटे में यूज कर लेना चाहिए या 48 घंटे में उसको मैक्सिमम यूज कर लेना चाहिए. आजकल के दिन मतलब ये कोरोना और म्यूकरमाइकोसिस के डेज जब चल रहे हैं तब तो इसको जो है वो कोशिश करें कि अवॉइड करें. ब्रेड वगैरह घर पे रोटी सब्जी ही खाए, ताजा खाना खाए तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे. एक्सपायरी डेट उसकी चली गई है इसीलिए उस बीजी ने शायद उसको रिटर्न कर दिया है. एंड सेकंड ऑप्शन, how did she find that the bread had got spoiled? She may have observed the black velvety spots on the bread. This is a velvet जैसे देखो ये spots दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना. तो इसकी वजह से भी उसने शायद रिटर्न कर दिया होगा. Find out. Look carefully at 2-3 packets of food items. Now see, every month we are bringing certain food items like sauce and many more. Even if we buy Colgate also, in that also we can find that it is best before 24 months. यानी 24 महीने के पहले जो उसको है यूज कर लेना चाहिए. और 24 महीने कहाँ से काउंट करने, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर लिखा हुआ रहता है तो वहां से 24 महीने हमें काउंट करने. सॉस को भी लिखा रहता है कि इसको जब आप खोलेंगे और तो उसको 1 महीने 2 महीने के अंदर यूज कर लीजिए. कोल्ड ड्रिंक्स रहता है उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि जब इसको पैक किया है उसका पैक डेट रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, एमएफजी डेट जिसको बोलते हैं. वो एमएफजी डेट से 6 महीने के अंदर उसको यूज कर लेना रहता है. अलग अलग चीजों की अलग अलग एक्सपायरी डेट्स होती है. व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट? पैकेट पे क्या लिखा है उससे हमें क्या पता लगता है? द फूड पैकेट कैन गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फूड पैकेट, प्राइस ऑफ द आइटम, उसकी प्राइस क्या है, वेट उसका वजन कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब बना है, डेट ऑफ एक्सपायरी कब तक वो अच्छा रहेगा, एंड इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स मींस वो चीज जो बनी है वो किस से बनी है. What all things are used to make that things is called ingredients. जैसे suppose if we are talking about the packet of bread, what all things were used to make bread. If we are talking about the packet of biscuit, what things they used to make biscuits, you can find it. उसमें ग्लूकोज कितना है, शुगर कितना है, प्रोटीन कितना है, वो सारी चीजें रहती है. जब भी हम लोग आप देखना कोल्ड ड्रिंक जब पियोगे ना तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि उसमें कौन कौन सी चीज डाली हुई है, कैफीन कितना है ना. कभी ऐसा नहीं रहता कि उसमें नींबू पानी डाला है, कभी भी नहीं रहता है ना. तो आप कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, बेटर है घर पर नींबू पानी पीजिए. When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? I check for the dates of manufacturing and expiry. See, देखो आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हो ना, ये दोनों चीजें आपको 100% देखनी है. आप मेडिसिन भी खरीदते हो ना, मेडिसिन पर भी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी हुई रहती है. आई ऑल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट, उसका वेट और प्राइस कितना है. कभी कभी क्या रहता है, कोई लोग जैसे ध्रांगध्रा में ये सारी चीजें बहुत होती है कि अमूल गोल्ड की जो दूध का पैकेट है वो मिलता है 28 में, लेकिन वो लोग 1 रुपया बढ़ा के हमसे लेते हैं. वैसे भी अगर देखा जाए तो बटर मिल्क है, छाछ है, वो भी क्या है कि उसकी कीमत भी 2 रुपए या 1 रुपए बढ़ाकर ये लोग हमें बेचते हैं. तो हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि उसकी प्राइस कितनी है और उसका वेट कितना है. नाउ हियर we have one more activity. This is the same activity we have discussed in our first slide. This is black fungus. How does food get spoiled? अब हम लोग क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट जब हम क्लास में मिलेंगे ना तब करेंगे, आप घर पर इसको बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए. The whole class can do this experiment together. Take a piece of bread or roti. हमें एक ब्रेड और रोटी का लेना है. Sprinkle, एक पीस लेना है. Sprinkle a few drops of water in it. उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दीजिए and put it in a box. We have to keep this bread
or roti in a box. Close the box, will shut it down. See the bread or roti every day until you find some changes. उसको डेली मॉर्निंग को हमें खोल के देखना है स्कूल आने से पहले, है ना, लेकिन अभी नहीं, जब स्कूल शुरू होगा तब देखेंगे उसको, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है. मेक दिस टेबल ऑन द chart paper and put it up in the classroom. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. See, I have written this table for you and we will discuss what all changes happen on every day. Let us see. This is changes in the bread or roti. By touch. टच करेंगे तो उसको कैसा होगा? By smell, by looking through hand lens, and this one is the spores. By color in the table. Let us see clammy soft. फर्स्ट डे पे क्लेमी सॉफ्ट, क्लेमी का मतलब होता है चिपचिपा, थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा और थोड़ा, एंड इट विल लाइटली स्मेल, और उसका लुक क्या रहेगा? इट विल लुक नॉर्मल, और कलर भी जो सेम है वैसा ही हमें दिखेगा. ऑन सेकेंड डे क्लेमी एंड सॉफ्ट, टच भी उसका है सेम रहेगा. नाउ लाइट स्टिंकिंग स्मेल, अब धीरे धीरे थोड़ी बदबू आएगी. वेलवेट लाइक व्हाइट लेयर, नाउ यू कैन सी अ वेलवेट, वेलवेट एक कपड़ा होता है बहुत सॉफ्ट होता है, वेलवेट लाइक व्हाइट लेयर यू कैन फाइंड. नाउ कलर विल बी स्लाइटली व्हाइट. मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, अब जो है उस पे थोड़ा मॉइस्ट आ जाएगा, मतलब गीलापन ज्यादा आएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा. और नाउ इट विल स्टिंक लाइक एनीथिंग, बहुत बदबूदार हो जाएगा, स्टिंकिंग स्मेल. वेलवेट लाइक व्हाइट लेयर विल रिमेन सेम, अब जो उसका कलर जो है वो व्हाइट हो जाएगा. अब ये सारी चीजें जो है बाय टच एंड बाय स्मेल फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ डे तक सेम ही रहेगी. धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मॉइस्ट हो जाएगा, और रोटी होगी ना तो रोटी कड़क हो जाएगी, बहुत कड़क हो जाएगी. ब्रेड भी धीरे धीरे कड़क हो जाएगा, है ना, और उसमें बदबू और आने लगेगी. नाउ द व्हाट विल हैपन टू द कलर ऑन द फोर्थ डे? ग्रीनिश व्हाइट कलर, स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो घास जैसा होगा. एंड द कलर विल बी ग्रीनिश व्हाइट, कलर जो है थोड़ा ग्रीनिश व्हाइट हो जाएगा. ऑन द फिफ्थ डे ग्रीनिश कलर्ड ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, अब जो ग्रास लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर, देखो ये एक्सपेरिमेंट घर पर बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है. एंड द कलर विल बिकम ग्रीन. नाउ ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, अब जो है ग्रीनिश व्हाइट से वो ग्रीनिश ब्लैक हो जाएगा, है ना, और जो उसका कलर पूरा जो है ग्रीनिश ब्लैक हो जाएगा. सेम चीज जो हमने वो ब्रेड में देखी थी ना, और जो बीजी लेने गई थी अमन्स बीजी, उसमें जो देखी थी वैसा ही दिखेगा. Now find out the reason for these changes. Now we have seen कि इसमें जो कलर चेंज हो रहा है या जो स्पॉट्स हो रहे हैं वेलवेट जैसे, why it is happening, from where did the fungus come on the bread. फंगस क्या होता है वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. आप अभी एक चीज सोचिए कि फंगस ऐसी चीज है मतलब जो चीज को खराब कर देती है ना. Now these changes occurred because of rotting of bread. The spores of fungus are present in the air. When they got a moist surface and food, they begin to grow. देखो फंगस हमारे अगल बगल में ही रहती है, लेकिन उनको जैसे ही थोड़ा भी जो है मॉइस्चर मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी और खाने जैसी कोई चीज मिलती है तो उसके ऊपर फंगस जो है ग्रो करना शुरू करती है. Different kinds of food items spoil due to different reasons. Some food spoil soon, some stay good for long. List some seasons and conditions in which food spoils quickly. देखो कुछ खाने जल्दी खराब हो जाते हैं, and some will spoil, some will stay for the long time. These all depends upon the seasons. Let us see. The food spoils quickly in summer and rainy season. है ना, ये गर्मी की वजह से जो है ना बहुत ज्यादा खाना खराब हो जाता है. कंडीशंस इन विच द फूड स्पॉइल्स क्विकली, देखो खाना कब खराब हो जाता है? इफ कुक्ड फूड इज केप्ट इन ओपन, इफ इट इज केप्ट इन ओपन एरियाज देन इट विल स्पॉइल क्विकली. इफ मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, सी आपने घर पे देखा होगा कि दूध जो है आते ही गर्म करते हैं उसके बाद उसको पीते हैं, है ना, अगर उसको गर्म नहीं किया गया
तो क्या है कि वो जो है दूध है खराब हो जाएगा. If green vegetables are kept in hot and humid places. See, whenever we are bringing any vegetables nowadays, we need to clean it regularly to avoid infection of black fungus. और जो ग्रीन वेजिटेबल्स को अगर ज्यादा गर्म जगह पर भी रखे तो भी उसमें फंगस हो जाती है, और ज्यादा ह्यूमिड यानी जो गीली जैसी चीजें है वहां पर उसको रखेंगे तब भी जो है वो खराब हो जाती है. नाउ let us see, given below are some food items and some simple methods by which this could be kept fresh for 1 or 2 days. Match the correct price. See, now here are some simple methods by which we can keep our food fresh for 1 or 2 days. देखो यहाँ हमें मैच करना है. See, मिल्क को अगर हमें जो है 2-3 दिन 1-2 दिन तक रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली वी विल बॉयल इट. उसको क्या करना पड़ेगा? बॉयल करना पड़ेगा. कुक्ड राइस, अगर हमें कुक्ड राइस को प्रिजर्व करना है तो हम लोग उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे? पुट इट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर. थोड़ा पानी डाल के, दूध को भी वैसे रखा जाता है, गर्म करने के बाद थोड़ा पानी डाल के उसको अंदर रखा जाता है. तो इसको भी जो है हम उसी तरह से प्रिजर्व करेंगे तो ये भी जो है 1-2 दिन तक अच्छा रहेगा. कोरिएंडर यानी धनिया जो है उसको कैसे 1-2 दिन तक फ्रेश रखा जाता है? रैप इन अ डैम्प क्लॉथ. डैम्प मीन्स थोड़ा गीला कपड़ा है, उसके अंदर उसको अगर रैप करके रखा जाए तो वो 2-3 दिन तक अच्छा रहता है. ऑनियन एंड गार्लिक, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस. उसको क्या है, ड्राई और खुले स्पेस में छोड़ देने से वो क्या है कि अच्छा रहता है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल मीट इन द सेकेंड पार्ट.